Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Okay, in last lecture we have been discussed some basic definition of the list. What is list? How it is? How it look likes, and we compare the list with the arrays. So in this lecture we discuss some more technical terms of list. Okay, empty list, what is meant by empty list? When there are no elements in the list. Okay, so this type of list is known as empty list. List size, total number of elements in the list is known as the total size. Okay, if a list consists of 3 nodes, it will have 3 size. 10 nodes, it will have 10 size. Head identifies the beginning of the list. The node which occurs at the start of the list is known as head node, and it may refer to the first element of the list. Tail identifies the last element of the list, and these definitions were some discussed in previous lecture as well, but here I am refreshing it again. Okay, node, what is meant by the node? Implementation of list data items. Okay, जो जिससे हम लिस्ट डेटा आइटम को क्रिएट करेंगे उस स्ट्रक्चर को हम नोड कहेंगे. ठीक है. ओके, लिस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स. what are the possible requirements क्या होंगी? List should be able to grow, right? If you want to add an element, or you remove an element from, so it can grows and shrink. List should be able to shrink. When you insert an item, it will mean the list is going to grow, and if we remove an item, the list is going to what it will means के the list is going to shrink. Accessing list item means के whenever we need to read an item from the list, or we are accessing to the contents of the nodes of the information field for some purpose, so it means that we are accessing the list item. Initialize mean ability to clear or initialize the list. Create an empty list. When we create an empty list and we give them certain initial value, right? So it will be initialization. Okay, what are the basic operations that are allowed to be applied on list? So the basic operations on linked list are creation, means how you will create the list. Insertion, how you will insert an element in the list. Deletion, how you will remove an element from the list. Traversing, when you are accessing the list items. Searching, when you want to find out a specific element in the list. Concatenation, when you are going to attach two lists, one list with the other list. And display, when you want to show the results of the list through some display algorithm. So these are the basic operations, and now for these operations we will discuss some algorithms, right? Okay, creation. The first basic operation on the list is to create a linked list. How we will create, right? Insertion means when we are going to create a node and we will create a new node. So the insertion operation is used to insert a new node in the linked list at the specified position. A new node may be inserted at the beginning of the linked list or at the end of the list, or it can be inserted at any specified position, means in the middle of the list. If the list itself is empty, then the new node is inserted as a first node. मीन क्या हुआ कि जब आप इंजर्शन ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि आया नोड आप एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करते हैं, एट द एंड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करते हैं, और इन द मिड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करते हैं एट सम स्पेसिफाइड पोजीशन. और अगर आपने अभी लिस्ट एम्प्टी है और आपने फर्स्ट टाइम उसको क्रिएट किया है, तो जो नोड क्रिएट होगा या इंसर्ट होगा वो एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट आएगा. ठीक है. ओके, so insertion is a basic operation on the one basic operation of the list.
Deletion, what is meant by deletion? Deletion operation will remove a node from the list, and it may be deleted from the beginning of a list, and it can be removed from the specified location. यानी deletion आप start से भी कर सकते हैं, end से भी कर सकते हैं, और आप okay. Now, so in the next operation, searching. If you want to search an element in the list, you will apply a search algorithm, and you will be given a certain search item, and you will find out an item with the by using the some matching algorithms and some matching techniques. Okay, I have discussed concatenation and displays as well in before a while before. Now come to the basic algorithms of this. Okay, create a dynamic node, create a list, traversing a list, insert a node, and delete a node. So here are the basic steps for creation, traversing, insertion, and deletion. This is with respect to the programming point of view. अगर आप C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उसमें आप लिस्ट बनाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? आप एक डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट के नाम से लेंगे. स्ट्रक्ट जो है इट विल रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड इन द C++ में स्ट्रक्ट जो है ये जिस तरह एरे में हम कंजेक्टिव एलिमेंट स्टोर करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम एरे कहते हैं. तो स्ट्रक्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन एरे और स्ट्रक्ट में फ़र्क ये है कि एरे के तमाम आइटम्स जो है उनका डेटा टाइप सेम होता है, जबकि स्ट्रक्ट के जो आइटम्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास सेम हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, स्ट्रक्ट के थ्रू आप लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे कैसे कि सपोज़ आपने एक स्ट्रक्ट लिया. स्ट्रक्ट इज़ द रिजर्व्ड वर्ड. नम नोड मीन कि आपने स्ट्रक्ट को जो नेम दिया है उसका नम नोड है. ओके, इस स्ट्रक्ट में करंटली दो फील्ड्स हैं. एक फील्ड है वैल्यू एंड द अदर वन फील्ड इज़ आपके पास जो नम नोड है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंटर है. नाउ नेक्स्ट इज़ अ पॉइंटर टू दिस नम नोड. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है ये एक पॉइंटर है, और ये नेक्स्ट फील्ड जो है ये पॉइंट कर रहा है किसको? नम नोड को, क्योंकि आपका नम नोड जो है ये स्ट्रक्ट आपने लिया है. अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसको समझाती भी हूँ कि कैसे. ओके, नाउ ये तो हमने नोड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन कर दिया. नोड का स्ट्रक्चर हमने इम्प्लीमेंट किया C++ में थ्रू स्ट्रक्ट डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर इन द C++, और ये जिस तरह एरे डेटा स्ट्रक्चर है और हम C++ में एरे यूज़ करते हैं, लेकिन एरे में तमाम आइटम्स एक जैसे होते हैं, जबकि स्ट्रक्ट के तमाम आइटम्स एक जैसे नहीं होते हैं. एरे का साइज़ भी जो है तो वो आप एक फ़िक्स साइज़ रखते हैं, जबकि स्ट्रक्ट में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ील्ड्स जो हैं वो स्टोर करते हैं. तो इस वक्त इस स्ट्रक्ट में दो फ़ील्ड्स हैं, एक वैल्यू है और दूसरा आपके पास क्या है? एक पॉइंटर है, और ये पॉइंटर जो है ये फिर जो इनकमिंग आपके पास नोड होगा उसको पॉइंट करेगा. ठीक है, ओके. फिर हमने इस नेक्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा है नम नोड. ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका पॉइंटर हमने हेड, करंट, टेम्प और NPTR, ये 3 पॉइंटर्स हमने लिए हैं. C++ में पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक का साइन यूज़ आता है. ठीक है, तो स्टैटिक हेड ये एक पॉइंटर है, स्टैटिक करंट ये भी हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, स्टैटिक टेम्प ये भी एक पॉइंटर है, एंड स्टैटिक NPTR ये भी एक पॉइंटर है. लेकिन इन पॉइंटर्स का टाइप क्या है? जिस तरह हर डेटा स्ट्रक्चर का कोई टाइप होता है, मीन डेटा टाइप इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, तो इस तरह आप पॉइंटर का भी टाइप रखते हैं कि आपने ये पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर रखा है, आपने ये फ्लोट वेरिएबल के लिए पॉइंटर रखा है, और आपने ये कैरेक्टर वेरिएबल के लिए पॉइंटर रखा है. तो हमारा ये जो पॉइंटर है इस वक्त करंटली ये पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है कि ये एक नोड को पॉइंट करेगा. ठीक है, ओके. इनिशियली हमने हेड में जो है क्या साइन कर दिया? नल, मीन हेड इज़ पॉइंटिंग, दिस टाइम द लिस्ट इज़ एम्प्टी. सो दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट. ठीक है, राइट. ओके, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि ये जो हेड पॉइंटर है ये क्या करेगा? टू होल्ड द लिस्ट. करंट क्या करेगा? इट विल ट्रैवर्स द लिस्ट. एंड टेम्प क्या करेगा? टू मार्क अ नोड इन द लिस्ट.
और नल NPTR के अगर टू लोकेट अ न्यू नोड। ये बेसिक पॉइंटर्स हैं जो हमें लिस्ट के क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, किसमें, C++ में, जब हम अगर लैंग्वेज C++ यूज़ करें और हम उसमें नोड को क्रिएट करें। ठीक है, ओके, नाउ आगे चलते हैं। नाउ हाउ वी विल क्रिएट अ डायनेमिक लिस्ट, लुक एट दिस यूजिंग अ न्यू पॉइंटर। ठीक, C++ में आप न्यू जो वर्ड है इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, न्यू ऑपरेटर के ज़रिए आप जब भी कोई न्यू पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो न्यू जो ऑपरेटर है इसका काम होगा कि ये पॉइंटर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस वक्त NPTR इज इक्वल टू न्यू नम नोड, तो हम पॉइंटर तो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू के ज़रिए हम पॉइंटर तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंटर किस टाइप का है, वो पॉइंटर जो है वो नम नोड का होगा। मींस कि हम नम नोड के थ्रू नम नोड जो स्ट्रक्चर है उसका हम, यानी मेमोरी में आपने नम नोड क्रिएट किया। ठीक है, तो ये जो नम नोड क्रिएट हुआ इसका कोई एड्रेस मेमोरी में है, वो एड्रेस किस में स्टोर है, वो इस NPTR में स्टोर है। ठीक है, और ये किसने साइन किया, ये न्यू पॉइंटर के थ्रू, न्यू ऑपरेटर के थ्रू हमने जो NPTR वेरिएबल में है उसमें हमने नम नोड का जो एड्रेस है वो साइन कर दिया है। ठीक है, तो NPTR में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो एक एड्रेस होगा, और वो एड्रेस किसको पॉइंट करेगा, मेमोरी में जो नम नोड क्या है, वो एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। अभी हमने एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप पीछे लेक्चर में, पीछे स्लाइड में मैंने आपको बताया कि उसमें दो फील्ड्स होंगे, एक इंट फील्ड होगा और एक एक वैल्यू फील्ड होगा जिसका डेटा टाइप इंट होगा, और एक आपके पास नेक्स्ट फील्ड होगा। तो वो जो नेक्स्ट फील्ड है वो भी ऑफ टाइप नोड होगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट में भी एक एड्रेस होगा लेकिन वो नेक्स्ट नोड का होगा। ठीक, सो दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएटेड व्हाट अ सिंपल नोड इन द मेमोरी। ठीक है, नाउ सी आउट इंटर अ नंबर। अब अगर आप कोई नंबर रीड कर देते हैं, ठीक है, सी इन के थ्रू करेंगे। अब सी इन के थ्रू आपने क्या किया, देखिए, जब आप पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और उस लोकेशन पे आप कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो, तो आपने उस पॉइंटर का नाम और साथ में ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, एरो, और जिस पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है, जिस फील्ड को आप वैल्यू देना चाहते हैं, लाइक वैल्यू, ठीक, तो आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी। ठीक, सही, तो जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे, जैसे इस वक्त करंटली 10 जो है वो असाइन हुआ है, वो आपके पास किस में जाएगा, ये वैल्यू आपके पास नम नोड के वैल्यू फील्ड में जाएगी। और दूसरा नेक्स्ट देखिए, आपने NPTR के नेक्स्ट जो फील्ड है उसको नल कर दिया। ठीक, राइट, तो इस वक्त करंटली NPTR मेमोरी पॉइंटर है, इस पॉइंटर में एक एड्रेस है, वो एड्रेस किसी नोड का है, और वो नोड कौन सा है, नम नोड का एड्रेस हमने डाला है। तो उसमें एक वैल्यू, उसके वैल्यू फील्ड में 10 आ गई, जबकि उसके नेक्स्ट फील्ड में आपके पास नल है। मींस इस वक्त वो फर्दर आगे नहीं जा रहा है, किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ इन कमिंग स्लाइड में अब देखिए, अगर आप एक नोड डिलीट करते हैं तो कैसे करेंगे, कि आप सिंपली यूज़ करें द डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर का काम क्या है, C++ में डिलीट ऑपरेटर जो है वो उस पॉइंटर को डिलीट कर देता है, ख़त्म कर देते हैं। तो डिलीट NPTR क्या करेगा कि जो पॉइंटर मेमोरी में बना था उसको डिलीट कर देगा। जैसे इस वक्त अगर हम देखेंगे डिलीट NPTR, ठीक, तो इट विल डिलीट द नोड पॉइंटेड बाय, ठीक है, जिस भी जगह पॉइंट नोड को ये NPTR पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वो डिलीट कर देगा। अब अगर हम करें NPTR, ये हमने एक और पॉइंटर ले लिया, ठीक है, पॉइंटर टू नल, तो इसको हमने सेट पॉइंटर टू नल कर दिया। इफ़ द लिंक लिस्ट मोर देन 1 नोड्स, अगर अब लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड्स हैं, ठीक है, जैसे इस वक्त आप देख रही हैं कि एक 1 2 3 इस में 3 नोड्स हैं, और हम बीच का नोड डिलीट करना चाहते हैं। तो बीच का नोड डिलीट होते ही आपके पास लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब नोड पिछला नोड, यानी करंटली जो 10 नोड है
ये जिसके इन्फॉर्मेशन 10 है, आपने इसको डिलीट कर दिया, तो बैक पे जो नोड है इन्फॉर्मेशन 5 वाला और आगे जो नोड है इन्फॉर्मेशन 9 वाला, उसका कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। तो डिलीट एल्गोरिथम ने, अगर आप नोड डिलीट कर रहे हैं तो आपने ये केयर करना है कि जो जिस दो के बीच में डिलीशन हुई है उनका ब्रेक जो है वो ना हो। तो हम क्या करेंगे कि हम जो नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस होगा वो हमने पिछले नोड के नेक्स्ट फील्ड में डालना होगा, ठीक है। सो नीड टू चेंज पॉइंटर ऑफ रिकॉर्ड बिफोर द वन बीइंग डिलीटेड, ठीक है, सही है ना। हमने उस नोड से पहले जो नोड अकर हुआ है जहां हम डिलीशन कर रहे हैं उससे अगर के पहले कोई पॉइंटर कोई नोड है तो उसमें हमने उस जो डिलीटेड है उसके अगले नोड का एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये खुद थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाती भी हूँ, ठीक। फ़िलहाल आप इस डायग्राम से समझे, ठीक है। अगर आप आप अगर एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर, ये जो इस वक्त हम करंटली कोड देख रहे हैं ये सी का है, ठीक है। सी लैंग्वेज को यूज़ करके हम C++ लैंग्वेज को हम यूज़ करके लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। जैसे देखें हमने इस वक्त भी NPTR हमारा एक पॉइंटर है, न्यू के थ्रू हमने मेमोरी में एक नया नम नोड क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने दो इसके फील्ड्स हैं, एक वैल्यू फील्ड है और एक नेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। तो हमने C इन NPTR के वैल्यू में वैल्यू डाल दी 10 और नेक्स्ट पॉइंटर को हमने नल कर दिया, ठीक है। अब अगर इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, अगर हेड नल है, ठीक है, अगर आपके पास हेड पॉइंटर नल है, ठीक, तो आपने क्या करना है कि इनिशियली चूँकि आपने ये नोड क्रिएट किया है ना, इसको अगर आप हेड नोड बना रहे हैं, ठीक, तो आपने एक हेड पॉइंटर ले लिया, उस हेड पॉइंटर में इस न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेड इज़ इक्वल टू NPTR। तो नाउ हेड पॉइंटर और NPTR दोनों एक ही नोड को पॉइंटर कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट कर रहे हैं, ठीक। सो ये हमने फर्स्ट नोड क्रिएट कर दिया जो, और उसको हमने हेड नोड भी बना दिया, क्लियर। ओके, नाउ हाउ यू विल ट्रैवर्स, अगर आप किसी लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ट्रैवर्स मीन यू आर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें। ओके, थोड़ा सा वेट में इसकी एक्सप्लेनेशन जो है फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में करती हूँ आपको। नाउ सपोज़ आपके पास चूँकि लिस्ट जो है उसके दो फील्ड्स होते हैं, एक इन्फो और एक नेक्स्ट, ठीक है। इसको हम नोड कहते हैं, ठीक है, दिस इज़ नोड। अब ये नोड जब मेमोरी में बनता है तो इसका कोई एड्रेस होता है और वो एड्रेस किसी पॉइंटर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो आपने सपोज़ कोई सा भी पॉइंटर ले लिया, ठीक, वो पॉइंटर जो है वो इस नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। सी में हम पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टेरिक के साथ, स्टेरिक PTR। लेकिन हर पॉइंटर का अपना एक टाइप होता है, यानी पॉइंटर अगर किसी इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करता है तो आप स्टेरिक NPT स्टेरिक के साथ इंट लिखते हैं शुरू में। अगर वो किसी पॉइंटर जो है अगर वो किसी फ्लोट वेरिएबल को पॉइंट करता है तो उसके आगे हमने फ्लोट लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंटर आपके पास किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक, तो इस नोड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये नोड दो फील्ड्स पे कंसिस्ट है इस वक्त। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास फील्ड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा आइटम्स हों, ठीक है, तो एक को तो हम एरे कहते हैं, लेकिन एरे में तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, डेटा टाइप के होते हैं, जिसको हम होमोजीनस डेटा टाइप कहते हैं, होमोजीनस डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन जो नोड है वो होमोजीनस नहीं, क्योंकि एक में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और दूसरे में हम एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास नोड का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप C++ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्ट रिकॉर्ड। इसको
बाज़ लैंग्वेजेस में इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास जो फील्ड्स हैं, रिकॉर्ड एक से ज़्यादा फील्ड पर मुश्तमिल होता है, ठीक। जैसे अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया तो स्टूडेंट का क्लास नंबर, स्टूडेंट का नेम, ठीक, स्टूडेंट का एड्रेस। अब ये सारे जो जितने भी फील्ड्स हैं इनका डेटा टाइप सेम नहीं होता है, ठीक। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें आपके पास आइटम्स जो हैं, जो फील्ड्स हैं, उनका डेटा टाइप सेम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड को हम इम्प्लीमेंट जब करते हैं C++ में, तो उसके लिए हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है स्ट्रक्ट, ठीक। आप स्ट्रक्ट आप डिफाइन करती हैं, जिस तरह आप एरे डिक्लेयर करती हैं इस तरह आप स्ट्रक्ट भी डिक्लेयर करती हैं, ठीक। स्ट्रक्ट कैन स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेसेस में आपने उन फील्ड्स को जो आपके रिकॉर्ड में मौजूद हैं वो डिक्लेयर करती हैं, ठीक। जैसे आपने इस वक्त क्लास नंबर तो आप कहती हैं इंट, ठीक है, CNO क्लास नंबर। ये स्ट्रिंग तो आप कहती हैं नेम, राइट। फिर स्ट्रिंग एड्रेस, सपोज ये अब एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। इस रिकॉर्ड स्ट्रक्ट का अपना एक नाम भी होना चाहिए। सपोज आपने इसका क्या नाम दे दिया? स्टूडेंट, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड स्टूडेंट का जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करती हैं, आप टाइप दिस, तो आप कहती हैं कि S1 इज़ अ टाइप स्टूडेंट, ठीक। S1 रिकॉर्ड, स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड। अगर आप दूसरा रिकॉर्ड देना चाहती हैं तो फिर आप S2 दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मेमोरी में एक S2 के नाम से दूसरा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होगा, क्लियर, यानी आप उसके लिए इंजर्शन कर सकेंगे। सो ये थोड़ा सा बेसिक आपको स्ट्रक्ट के मुतालिक बताना था, क्योंकि अभी हम नोड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किस फॉर्म में? स्ट्रक्ट के फॉर्म में, राइट। ओके, नाउ आप नोड बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप क्रिएट करना चाहते हैं नोड, राइट। यू वांट टू क्रिएट अ नोड। नोड मेमोरी में कैसे बनेगा? नोड के 2 फील्ड्स हैं, ठीक। अभी मैंने आपसे कहा इन्फो एंड आपके पास लिंक, इन्फो और लिंक और नेक्स्ट कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिंक की बजाय आप नेक्स्ट भी दे सकती हैं, ठीक। अच्छा, इन्फो में इंफॉर्मेशन है और नेक्स्ट में आपके पास एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होगा, ठीक। अब आपने चूँकि इसको एज अ इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एक बन गया आपके पास रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड है लेकिन 2 फील्ड्स का। कितने फील्ड का? 2 का। एक इन्फो फील्ड हो गया और एक नेक्स्ट। अब इसके लिए अगर मैं कोडिंग करूँगी, ठीक, तो मैंने इसको नाम दे दिया नोड का। क्या? स्ट्रक्ट नोड, नोड, ठीक। इसको हमने कोई नोड का नाम दे दिया, कोई भी नोड। सपोज इस वक्त आपने कहा नम नोड, ये इसका नाम हो गया। इस वक्त करंटली इसमें हमने 2 फील्ड्स रखे हैं। एक फील्ड में तो हम इंफॉर्मेशन रखेंगे, मीन कोई वैल्यू रख लेंगे, ठीक। तो वो उसका तो टाइप हमारे पास क्या होगा? इंटीजर। तो हम कह सकते हैं इंट इन्फो इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। इन्फो की जगह जो बुक में एग्जांपल आपको गिवन है, जो स्लाइड में है, यहाँ पे वैल्यू है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए मैंने इसको वैल्यू कर दिया, राइट, वैल्यू, ठीक है। और इसको भी मैंने वैल्यू कर दिया, ठीक। ये आपकी आसानी के लिए ये वैल्यू हो गया, ठीक। और ये नेक्स्ट फील्ड। अब नेक्स्ट फील्ड में तो चूँकि हम क्या रखेंगे? एड्रेस रखेंगे। नेक्स्ट फील्ड हमारा क्या होना चाहिए? पॉइंटर होना चाहिए। इस नेक्स्ट फील्ड में एड्रेस होना चाहिए। किसका एड्रेस? जो इनकमिंग नोड होगा उसका एड्रेस होना चाहिए। तो नेक्स्ट का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज़ बेसिकली अ वेरिएबल। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जिसमें एड्रेस हो। वैसे तो वेरिएबल में आप कोई ना कोई वैल्यू रखती है ना, 30 40, लेकिन वो वेरिएबल, वो स्पेशल वेरिएबल जिसमें किसी और
वेरिएबल का एड्रेस हो। याद रखें कि जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं मेमोरी में उनका कोई यूनिक एड्रेस होता है। सपोज़ ये एक वेरिएबल है ए, इसका कोई एड्रेस है मेमोरी में 200, इसमें आपने कोई वैल्यू स्टोर की है सपोज़ 45, तो ए नाम है वेरिएबल का, 200 उसका सपोज एड्रेस हो गया और 45 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इस वक्त मैं एक और वेरिएबल पॉइंटर अगर ले रही हूँ तो पॉइंटर भी वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में फ़र्क क्या है कि इसमें एक नॉर्मल वैल्यू स्टोर है, जबकि पॉइंटर में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। जैसे इसमें अगर मैं ये 200 स्टोर कर दूँ तो ये 200 किस को पॉइंट कर रहा है, ये इस वेरिएबल के लिए एज अ पॉइंटर है। नाउ दिस ptr, ये जो ptr है ये सिंपल वेरिएबल नहीं रहा, इट इज़ अ पॉइंटर। ये क्या बन गया, पॉइंटर बन गया। नाउ इट इज़ पॉइंटिंग टू अनदर लोकेशन इन द मेमोरी। सो पॉइंटर आपके पास एक वेरिएबल है, लेकिन it is such a variable that it will hold an address of another location in the memory. So next भी इस वक्त चूँकि हमारा पॉइंटर है, नेक्स्ट नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, ये पॉइंटर होगा। तो पॉइंटर को C++ में डिक्लेयर करने के लिए आपने स्टैरिक का साइन यूज़ करना होता है, स्टैरिक। नेक्स्ट दूसरा, जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले उसका टाइप लिखना ज़रूरी होता है कि ये इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमारा ये पॉइंटर एक नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ये जो पॉइंटर है ये एक नेक्स्ट नोड को पॉइंटर कर रहा है, और वो नोड क्या है, नम नोड है। नम नोड, ये खुद भी नम नोड है, ठीक है, और ये भी नम नोड है। ठीक, तो नम नोड दोनों है, नम नोड दोनों स्ट्रक्चर चूँकि नम नोड के हैं, लेकिन यहाँ आपके पास ये एक नोड ये भी नम नोड स्ट्रक्चर का है, दोनों क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रक्चर से लिए गए हैं। ठीक, लेकिन इस नेक्स्ट में एड्रेस किसका होगा, इस नोड का होगा, और ये बजाते खुद क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो आपके पॉइंटर का टाइप जो है वो क्या होना चाहिए, नम नोड होना चाहिए, राइट। ये ठीक, तो ये दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट अ नोड इन C++। आप नोड में C++ कैसे C++ में आप नोड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, ओके, अब आपने ये तो स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब अगर आप एक से ज़्यादा पॉइंटर इस एक नोड को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे, या एक से ज़्यादा नोड्स क्रिएट करना चाहती हैं तो क्या करेंगी, आपने नम नोड के, अगर आप एक से ज़्यादा नोड्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, नम नोड के आपने मुख्तलिफ वो रख दिए टाइप्स, नोड्स क्रिएट कर लिए। तो आप हेड नोड क्रिएट कर लें, आप टेल नोड क्रिएट कर लीजिए। ये ऐसे आपके पास क्या होंगे, ये इस डेटा स्ट्रक्चर के हेड और टेल, ये जो पॉइंटर्स हैं ये इन नोड्स को पॉइंट करेंगे। ठीक है, यानी नोड होंगे लेकिन ये भी एक पॉइंटर है, ये भी एक पॉइंटर है। ठीक, ओके, नाउ इसमें आप इंफॉर्मेशन कैसे डालेंगी, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आपका नोड तो बन गया, ठीक, अब नोड में आपने वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो चूंकि करंटली इस वक्त आपने एक पॉइंटर ले लिया, ठीक, आपने एक पहले तो आपने एक नोड क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आपने नोड तो क्रिएट कर लिया, नोड हम कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू पॉइंटर के ज़रिए। आपने एक न्यू वेरिएबल ले लिया, ठीक है, सॉरी एक पॉइंटर ले लिया nptr, ठीक, nptr हमने एक पॉइंटर ले लिया, ठीक, हमारा एक पॉइंटर है। अब नोड क्रिएट कैसे होगा, ठीक, हम कहेंगे nptr इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज एन ऑपरेटर, इस न्यू के ज़रिए आप नोड क्रिएट करेंगी। ठीक, न्यू नम नोड, न्यू नम नोड, आपने न्यू नम नोड का एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर लिया और उसका एड्रेस आपने nptr में डाल दिया। तो nptr जो है ये पॉइंटर हो गया, ये अब करंटली इसमें एड्रेस है किसका, इस नोड का, ठीक, इस नोड का, और न्यू इज़ आप ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर के ज़रिए आप नोड क्रिएट करती हैं। स्ट्रक्चर तो आपने डिफाइन कर लिया स्ट्रक्ट के ज़रिए, लेकिन क्रिएशन ऑफ नोड कैसे होगा, आप इसके आप इंस्टांसेस कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू न्यू
आप नोड्स कैसे क्रिएट करेंगे? बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, ठीक है, क्लियर? ओके, न्यू ऑपरेटर से हमने नया नोड क्रिएट कर लिया। अब उस नए नोड का एड्रेस किस में डाल दिया? इस NPTR में। सपोज इसमें 300, ये इसका एड्रेस है मेमोरी में, क्लियर? अब इसमें वैल्यू, इसके वैल्यू फील्ड में हम वैल्यू कैसे डालेंगे? NPTR के साथ आपने अगर वैल्यू डायरेक्ट डालना चाहते हैं, ठीक, ये NPTR और साथ में आपने ये एरो, ठीक, और आपने इसमें कोई सपोज वैल्यू 10 दे दी, ठीक, असाइन कर ली। ये आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू कर लिया। अगर आप सीन के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर आपने सी इन स्टेटमेंट में सी इन ये रन टाइम में वो फिर वैल्यू जो पॉइंटर है किसके, यानी NPTR जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके वैल्यू फील्ड में वैल्यू डाल दो, ठीक। अगर आप वैल्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं तो चले इन्फो फील्ड लिख दें, ठीक, यानी अगर हम इसको इन्फो कह दें तो NPTR जहाँ पॉइंट कर रहा है तो किसको पॉइंट कर रहे हैं? इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं। इसके इन्फो फील्ड में आप कोई वैल्यू डाल दें। अच्छा, और NPTR के जो नेक्स्ट फील्ड है नाउ NPTR के नेक्स्ट फील्ड में आप नल डाल दें, ठीक, तो मीन ये नेक्स्ट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब अगर हम दोबारा से एक नया नोड क्रिएट करना चाहेंगे तो हमने इन स्टेप्स को यूज़ करना होगा, ठीक है। ये दिस इज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ नोड, ठीक, राइट। ओके, अब अगर आपके पास नोड ले, अगर आपके पास ट्रैवर्सिंग है, आप ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे? ट्रैवर्सिंग यानी आप सपोज करेंगे कि मेमोरी में एक लिस्ट मौजूद है। ट्रैवर्सिंग के लिए आपने सपोज करना है कि मेमोरी में एक लिस्ट जो है वो मौजूद है, ठीक है, उसमें कुछ नोट्स हैं और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और इसके सपोज एड्रेस 100 है, इसका 200, इसका 500, इसका 700। यहाँ पे हेड एक नोड है, ठीक है, या स्टार्ट एक पॉइंटर है, कोई भी आप ले सकती हैं। उसमें ये फर्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक। अब इसके इन्फो में तो ए है और इसके लिंक में एड्रेस है नेक्स्ट किसका? नोड का। लिंक फील्ड में एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, मतलब 200 है इसमें। अच्छा, इसके लिंक फील्ड में अगले नोड का एड्रेस है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिंक फील्ड में अगले नोड का एड्रेस है तो मतलब इसका एड्रेस हो गया इसमें, ठीक है। ये और लास्ट चूँकि टेल आपके पास एंड है तो उसका वो नल होगा, ठीक। ओके, ये एक लिस्ट है और आप उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। हाउ यू विल ट्रैवर्स इट? तो आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए? मेन स्टेप्स ये होंगे कि आपने कोई भी स्टेप 1 आपका ये होगा कि आप कोई भी क्या ले लेते हैं, पॉइंटर ले लिए, ठीक। पॉइंटर हम ले लेंगे PTR को हमने सेट कर दिया। PTR में आपने इक्वल कर दिया उसको किसके? हेड के, ठीक है। तो इसका मतलब PTR भी एक पॉइंटर हो जाएगा जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, क्लियर, सही। अब हम ट्रैवर्सिंग का मतलब है एक्सेसिंग ऑल नोड्स वन बाय वन, राइट। ओके, अब हम एक लूप लगाते हैं स्टेप 2 में कि वाइल PTR इज नॉट इक्वल टू नल। अगर आपके पास PTR जब तक नल नहीं है तो क्या करो? तो इस वक्त हम चेक कर लेते हैं PTR 100 है ना, तो 100 तो नल नहीं है, तो हमने जो भी प्रोसेस अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या करो?
हमारा प्रोसेस जो है वो प्रोसेस मतलब डिस्प्ले करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं इन नोट्स के साथ। इन्फो ऑफ ए, ठीक, यानी आपके पास सॉरी पीटीआर, इन्फो ऑफ पीटीआर, नॉट इन्फो ऑफ ए, इन्फो ऑफ पीटीआर। पीटीआर जहाँ पॉइंट कर रहे हैं उसका इन्फो फील्ड प्रोसेस कर दो। अब चूंकि हमने आगे जाना है, ठीक, हम चाहते हैं कि ये पॉइंटर अब यहाँ आए, क्योंकि ट्रैवर्सिंग का मतलब ही यही है कि आप यहाँ से यहाँ आए, एक नोट को प्रोसेस कर दिया अब आगे जाओ, दूसरे नोट को प्रोसेस कर दिया अब आगे जाओ, तीसरे नोट को प्रोसेस कर दिया अब आगे जाओ, राइट। तो अब हम ये कैसे करेंगे? पीटीआर को आपने एडवांस करना है। पीटीआर को आप यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इस स्टेप को हम कहेंगे एडवांस पीटीआर। पीटीआर को एडवांस कैसे करेंगे? एक तो स्टेप 1 हो गया, दूसरा आपका स्टेप 2 क्या होगा? इसमें इसी लूप के अंदर आपने ये 2 स्टेप्स लाजमी करने हैं, ठीक। तो हम चूँकि इसको एडवांस करना चाहते हैं, इसको यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, तो हमें पता है कि इसके लिंक में इस नोड के लिंक में इस नोड का एड्रेस है। तो हम कहेंगे सेट ptr इज इक्वल टू लिंक ऑफ ptr। पीटीआर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में क्या है? पीटीआर इस वक्त पॉइंटर है और वो इस नोड को पॉइंटर कर रहा है। इसके लिंक में तो ए है, सॉरी इन्फो में तो ए है, लेकिन इसके लिंक में एड्रेस है इनकमिंग नोड का। तो अगर हम कहेंगे कि पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो इसका मतलब है कि ये जो 200 है ये असाइन हो जाएगा किसको? इस पीटीआर को, ठीक। तो पीटीआर यहाँ से जंप कर जाएगा यहाँ पे, ठीक, सही। अब एंड ऑफ वाइल। अब देखिए, अब दोबारा पीटीआर को चेक करें। पीटीआर में करंटली 200 आ गया, पीटीआर में अब क्या आ गया? 200 आ गया। तो 200 तो नल नहीं है, राइट। सो अगेन प्रोसेस इन्फो ऑफ पीटीआर, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर दो। करंटली पीटीआर यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर दो। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? बी है। उसके साथ जो भी करना है, डिस्प्ले करना है, सर्च करना है, वट एवर, लेकिन ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं हम, ठीक। किसी पर्पस के लिए हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ का काम प्रोसेसिंग तो हो गई, इन्फो ऑफ पीटीआर हो गया। अब फिर आगे जाओ, आगे जाओ तो कैसे जाओ? पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। अब करंटली पीटीआर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसके इन्फो में तो बी है, लेकिन इसके लिंक में क्या है? 500 है, ठीक। तो पीटीआर में अब क्या आएगा? पीटीआर में आपके पास अब 500 आ जाएगा, ठीक है। तो जब पीटीआर में 500 आ गया तो पीटीआर नाउ इस नोड की बजाय किस नोड को पॉइंट करेगा? जिसका एड्रेस 500 है, इसको। नाउ अगेन चेक कर लेते हैं, कहीं नल तो नहीं है ना? पीटीआर आपके पास नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो दोबारा क्या करो? इन्फो ऑफ पीटीआर कर लो। अब इस नोड की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगी, ठीक। अब दोबारा आपके पास लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। तो लिंक में क्या स्टोर है? 700 है, 700। तो इस वक्त आपके पास इसमें 700 आ जाएगा। तो आपने पीटीआर जो पॉइंटर है उसको अब आपने इसको सेट कर दिया, ठीक है। फिर पीटीआर नल नहीं है क्योंकि 700 है, 700 पे इंफॉर्मेशन डी है वो प्रोसेस हो गया। अब पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो इस वक्त लिंक फील्ड में क्या मौजूद है? नल मौजूद है। तो पीटीआर में अब कोई एड्रेस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? नल, कोई भी नल वैल्यू, ठीक, जो एड्रेस नहीं होगा, जो मेमोरी एड्रेस नहीं होगा, कोई भी नल वैल्यू वो असाइन हो गई। जब वो असाइन हो गई तो आपके पास वाइल में ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, इस वक्त नल है, आपके पास पीटीआर नल हो चुका है। यानी ये स्टेप्स, 2 स्टेप्स तब तक होते रहेंगे जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता। लेकिन इस केस में अब नल हो गया है तो ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ट्रैवर्सिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द मेन स्टेप फॉर द ट्रैवर्सिंग ऑफ द लिस्ट। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी स्ट्रक्चर की भी, आप नोट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके नाउ अब आप ऐसा करें कि C++ में एक लिस्ट क्रिएट करें, उसमें कुछ नोट्स क्रिएट करें और उन नोट्स का आपस में लिंक दें और उसको आप ट्रैवर्स करें। नाउ डिलीशन, अगर आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है,
और आप डिलीशन करना चाहते हैं, उसमें से नोड रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके मेन स्टेप्स क्या होंगे। उसी तरह हम एक लिस्ट सपोज करेंगे कि हमारे पास मेमोरी में एक लिस्ट है, उसमें कुछ नोड्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड एक लिस्ट है, ठीक है। हेड पॉइंटर भी हम लेंगे, हेड एक पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक। फिर नोड्स का बीच में कनेक्शन भी होगा, उसी तरह उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी स्टोर है, ठीक है। लास्ट जो टेल है उसमें नल भी स्टोर है। अच्छा, सपोज इसका एड्रेस 100 हो गया, इसका 300, इसका 500 और इसका 700, ठीक। नाउ अब हम चाह रहे हैं कि ये जो नोड है ये इसको डिलीट कर दें। तो डिलीशन के लिए आपके पास पहले तो उस नोड तक पहुंचना ज़रूरी है। डिलीशन आप जो है वो फर्स्ट नोड भी कर सकते हैं, डिलीशन आप लास्ट नोड भी हो सकता है, और डिलीशन किसी मिड का भी नोड हो सकता है। यानी आप ये नोड भी डिलीट कर सकते हैं, ये नोड भी डिलीट कर सकते हैं, और मिड में कोई नोड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट तो उस जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं उस तक पहुंचना है। यू विल रीच टू दैट स्पेसिफिक नोड, ओके। और तो उसके लिए आपका पॉइंटर PTR जो है उस नोड पे आना चाहिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लियर? ओके। सपोज इस वक्त मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम ये वाला नोड जो है इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस नोड तक पहुँचना है, ठीक। ओके, तो आई एम टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो एक पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, PTR, और उसको मैंने हेड नोड या स्टार्ट, ठीक है। तो PTR यहाँ से स्टार्ट होगी। क्लियर? अब हम सर्चिंग करेंगे, हमने उस नोड तक पहुँचना है जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई you want to delete an item a node with the information C। आपने उस नोड को डिलीट करना है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो C है, ठीक। ये जो आइटम है ये हमारा हो गया एक वेरिएबल, और हम कहते हैं कि हमने वो नोड सर्च करना है जिसकी इंफॉर्मेशन C है, ठीक। तो आइटम हमें गिवन है कि भाई आपने उस नोड को डिलीट करना है जिसके इन्फो में आपके पास क्या पड़ा है, C, ठीक। तो हम जनरली बात करेंगे, हम C नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाँ वी वांट टू डिलीट अ नोड विद द इन्फो आइटम, जिसमें डेटा आइटम है आइटम, और उसको हम पहले सर्च करेंगे और उस नोड को डिलीट करेंगे। क्लियर? ओके। तो आपने स्टार्ट ले लिया यहाँ से पॉइंटर यहाँ तक। अब हमने कंपेयर करना है कि भाई इस पॉइंटर पे जहाँ हम हैं इसका इन्फॉर्मेशन कहीं वो आइटम के साथ मैच तो नहीं कर रहा है, यानी कहीं ये हमारा वो स्पेसिफिक नोड तो नहीं है। क्लियर? तो हमने मैच करना होगा, चेक लगाना होगा कि भाई आपने जो आइटम वाला नोड सर्च करना है क्या ये वो नोड तो नहीं है, ठीक। तो हम चेक लगाएंगे। अच्छा, इससे पहले हम एक और पॉइंटर भी सेट कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी, Q पॉइंटर, ठीक। तो हमने एक और पॉइंटर भी ले लिया Q। तो Q और PTR दोनों पॉइंटर्स हैं जो इस फर्स्ट नोड को पॉइंट करें, ठीक। अब हम ये चेक करेंगे कि स्टेप 3 में कि रिपीट करो, तब तक रिपीट करते जाओ जब तक आपके पास क्या ना हो, इन्फो ऑफ PTR जो है वो आइटम के ना इक्वल हो जाए, तब तक रिपीट करते जाओ, या जब तक आपके पास इन्फो ऑफ PTR यानी PTR में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अगर आइटम के इक्वल है, ठीक, तो तब तक आप आगे जाते जाओ। जब वो आइटम आ जाएगा, ठीक, मतलब जब वो नोड आ जाएगा जिसको हम सर्च करना चाहते हैं डिलीशन के लिए, ठीक, तो हमने ये जो स्टेप चेक है ये हमने हर नोड के लिए लगाना होगा। यानी हम कहेंगे कि कहीं फर्स्ट हम चूँकि PTR यहाँ है तो हम इन्फो ऑफ PTR को कंपेयर कर लेंगे आइटम के साथ।
दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इसका मतलब है कि हम अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं डिलीशन वाले के। अगर नहीं है तो आगे जाओ, पीटीआर को एक आगे ले आओ, फिर वही चेक करो कि इन्फो ऑफ पीटीआर आइटम के साथ एक जैसा है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, हम स्पेसिफिक नोड पे पहुंच गए। अगर नहीं है तो आगे जाओ, इनकमिंग नोड पे जाओ, नेक्स्ट नोड पे जाओ, ठीक है। फिर चेक लगाओ कि भाई इन्फो ऑफ पीटीआर आइटम के साथ मैच कर रहा है। यस, इफ़ यस तो डिलीट द नोड, ठीक है, और आगे मत जाओ, राइट। तो अब आपने पहले उस लोकेशन पे पहुंचना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक। ओके, अगर आपके पास हम लगाएंगे रिपीट, यहाँ पे रिपीट है, रिपीट का मतलब होगा कि हम बार बार ये स्टेप्स रिपीट करेंगे, ठीक। और कब तक रिपीट करो, रिपीट अंटल इफ़ आपके पास इन्फो ऑफ पीटीआर जो है वो तक, कब तक रिपीट करते जाओ, जब तक आपके पास इन्फो ऑफ पीटीआर आइटम के इक्वल ना हो जाए, ठीक। यानी रिपीट वाइल इन्फो ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू आइटम, ठीक। तब तक करते जाओ जब तक आपके पास ये इन्फो ऑफ पीटीआर जो है वो आइटम के इक्वल ना हो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, पीटीआर को आगे बढ़ाओगे, लेकिन पीटीआर को आगे बढ़ाने से पहले क्यू एक पॉइंटर है उसको आपने पीटीआर के साथ लेके जाना है कि पीटीआर को क्यू एक पॉइंटर में स्टोर कर लो, ठीक। पीटीआर जो करंट लोकेशन है, करंट नोट है, उसको दूसरा एक पॉइंटर असाइन कर दो और पीटीआर को आप एडवांस कर दो। तो एडवांस के लिए आपने लिंक ऑफ पीटीआर यूज़ करना होगा, ठीक है। ये जो है ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये पीटीआर में जो कुछ है उसको दूसरे पॉइंटर को डाल दिया, ठीक, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि पीटीआर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक में जो चीज़ मौजूद है उसको पीटीआर में सेट कर दो। तो ऑटोमेटिकली पीटीआर जहाँ, सपोज पीटीआर यहाँ पॉइंट कर रहे हैं तो पीटीआर के इन्फो में तो ए है, लेकिन पीटीआर के लिंक में क्या है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक, इस इनकमिंग का एड्रेस है, ठीक है। ओके तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं अभी हम इसको रन करते हैं, थोड़ा आपको पेपर रन करती हूँ, ठीक है, कि ये कैसे काम करेंगे। क्यू इज इक्वल टू पीटीआर को सेव कर लो और नेक्स्ट स्टेप में पीटीआर को एडवांस कर लो, ठीक है, आगे बढ़ा लो उसको, और एंड ऑफ वाइल, ठीक है। ये ओके, ये तो हम, ये जो कोड है, ये स्टेप्स है, ये हम सिर्फ स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए है, क्लियर। ओके, नाउ चेक करते हैं। इनिशियली पीटीआर यहाँ पे है तो क्यू भी यहाँ पे है, क्लियर, यानी दोनों 100 वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अब इन्फो ऑफ पीटीआर ए है, लेकिन हम तो उस इंफॉर्मेशन को रिमूव करना चाहते हैं जिस में आइटम जो डेटा है वो सी है आपके पास, ठीक। तो इन्फो ऑफ पीटीआर में करंटली ए है, तो ए और सी तो दोनों सेम नहीं है। ए इज इक्वल टू सी, नो नहीं है, तो मतलब ये है कि आपके पास क्या हो, सॉरी यहाँ पे जब तक है हम कहेंगे जब तक आपके पास ये सेम ना हो तब तक आगे जाते जाओ, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू पी टी आर, वो तो सेम है ही, ठीक। पी टी आर इक्वल टू लिंक ऑफ पी टी आर,